لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ایک تو اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہے، اس جمعہ کی فضیلتوں کو جانتے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے جمعہ کے دن کی فضائل کو سمجھیں، جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جمعہ کے دن کی فضیلتوں کو جانیں گے، جمعہ کے دن کے فضائل کو یاد رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کے اندر جمعہ کی قدر ہوگی، اس کی قدر و قیمت آپ کریں گے، اس کی اہمیتوں کو سمجھیں گے اور جمعہ کے دن بھرپور عبادتوں کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواہ مسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ جمعہ کا دن آتا ہے۔ جمعہ کے دن کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن کے فضائل، جمعہ کے دن کے آداب، جمعہ کے دن میں کرنے والے اعمال کے سلسلے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن آتا ہے، لے دے کر زیادہ سے زیادہ مسلمان جمعہ کی نماز میں حاضری دیتے ہیں، جو کہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جمعہ کے آداب کا علم نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے فضائل اور اس کے اعمال کا علم نہیں ہوتا ہے۔ صرف جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کے دن سب سے اہم عبادت یہ جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کا خطبہ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن صرف یہی ایک عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مخصوص عبادتیں پیارے نبی نے نہیں بتائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جمعہ کے دن کے فضائل سے متعلق گفتگو کروں گا، جمعہ کے دن کے اہم آداب سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، اور جمعہ کے دن کون سے اعمال، مخصوص اعمال کتاب و سنت میں بتلائے گئے ہیں جن کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا میں ذکر کروں گا، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتاؤں گا جمعہ کے دن کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن کچھ ایسے حرام کام ہیں، کچھ ایسے ناجائز کام ہیں، مسلمان جہالت میں،
نادانی میں یا جان بوجھ کر سستی اور کاہلی میں اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ان اعمال سے جمعہ کے دن مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے، ان پر واجب ہے۔ اگر وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کی نظروں میں مجرم قرار پائیں گے، گنہگار قرار پائیں گے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن، سب سے خیر اور بھلائی والا دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل کیا۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے باہر نکالا۔ دوسری صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ جمعہ کے دن ہی قیامت کو اللہ تبارک و تعالی قائم کرے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کہا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے سال کے 12 مہینوں کے اندر جو دن آتے ہیں ان دنوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وفیہ قبل، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی تو وہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ یہی وہ جمعہ کا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ وفیہ النفخہ، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ وفیہ الصفقہ، یہی وہ دن ہے جس دن اسرافیل علیہ السلام کے سور کو پھونکنے کی وجہ سے دنیا کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائے گی، ان کو پہلی موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے، یہ بڑی اہمیتوں والا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے فضائل کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا، یہ جمعہ کا دن صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں، اس امت کے آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، جس کو ہم یہودی قوم کہتے ہیں، جس قوم کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس قوم کو ہم نصارہ کی قوم کہتے ہیں، امت محمدیہ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو یہود و نصارہ کے لیے عظمت والا دن قرار دیا تھا، عزت والا دن قرار دیا تھا، فضیلتوں والا دن قرار دیا تھا، کہ امت محمدیہ سے پہلے یہود و نصارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن کی عظمت کرے، جمعہ کے دن کی قدر کرے، اس کی عظمت کا اعتراف کرے، اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور اس جمعہ کے دن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی دیا تھا، لیکن یہود و نصارہ نے جمعہ کے دن کی قدر کو نہیں جانا۔ یہود و نصارہ نے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے تھے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے تھے جمعہ کے دن، جمعہ کی قدر نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد امت محمدیہ کو پیدا فرمایا،
जिस उम्मत जिसका ताल्लुक हमसे है, हम उम्मत मोहम्मदिया है, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमा के दिन को जो है अजमत वाला दिन करार दिया और इस जुमा के दिन को मुतय्यन फरमाया ताकि हम इस जुमा के दिन की कदर कर सके, इस जुमा के दिन खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके। नतीजा ये हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के फजाइल से, जुमा की अहमियतों से, जुमा की खैर से, जुमा के दिन की भलाइयों से यहूद व नसारा को अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। वो पीछे हो गए हमसे, जुमा के दिन की फजीलतों से आज वो महरूम है। जुमा के दिन के बरकत, खैर और भलाई से ये यहूद व नसारा आज महरूम है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया का बहुत बड़ा तबका इस दिन की अजमत का एतराफ करते हुए इस दिन के बरकत, खैर और भलाइयों को हासिल करने में लगा हुआ है। मोहतरम हजरात, आज देखिए यहूदी हफ्ते के दिन को अजमत वाला दिन करार देते हैं, हफ्ते के दिन को वो इज्जत की नजरों से देखते हैं, और नसारा जो क्रिश्चियंस है वो इतवार के दिन को अहमियत की निगाहों से देखते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिन के तमाम दिनों में जो सबसे अफजल तरीन दिन है जुमा का दिन, उस जुमा के दिन को उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है कि ये उम्मत मोहम्मदिया जुमा के दिन की अजमत का एतराफ करती है और उसकी कदर करती है। मोहतरम हज़रात, ये जुमा का दिन, ये दिनों में सबसे अफजल दिन, ये दिनों का सरदार दिन है, ये दिनों का सरदार दिन है। और इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते में आने वाले एक मर्तबा ईद करार दिया है। साल में मुसलमानों के लिए दो ईदें आती हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। लेकिन हर हफ्ते में, हर वारम के अंदर, हर हफ्ते में एक दिन जो आता है, ईद का दिन है, वो जुमा का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन को भी हफ्ते में सारे मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। सही इब्ने माजा की सही रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादा यौम ईद जअलहुल्लाहु लिलमुस्लिमीन, ये ईद का दिन है, जुमा का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इस जुमा के दिन को ईद का दिन करार दिया है। मोहतरम हज़रात, ये जुमा की कुछ फजीलतें मैंने आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में रखी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुसलमान एक तो इस जुमा की अहमियत को समझते नहीं है, इस जुमा की फजीलतों को जानते नहीं है। मुसलमानों को चाहिए जुमा के दिन की फजाइल को समझें, जुमा के दिन की अहमियत को समझें। क्यों? इसलिए कि अगर आप जुमा के दिन की फजीलतों को जानेंगे, जुमा के दिन के फजाइल को याद रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके दिल के अंदर जुमा की कदर होगी, उसकी कदर और कीमत आप करेंगे, उसकी अहमियतों को समझेंगे और जुमा के दिन भरपूर इबादतों के जरिए फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज मुसलमान जुमा के दिन, मैंने बताया, जुमा के खुतबे और नमाज के अलावा दीगर इबादतों से क्यों गाफिल है? इसलिए कि उन्होंने जुमा की अहमियत को नहीं समझा है, इसलिए कि उन्होंने जुमा के फजीलतों को नहीं जाना। अगर मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर जुमा के दिन के फजाइल पैवस्त हो जाए, जुमा के फजाइल वो याद रखे, तो यकीन माने मुसलमानों का तबका जुमा के दिन की फजीलतों को हासिल करने की कोशिश करेगा और जुमा के दिन को आम दिनों की तरह नहीं बनाएगा। मोहतरम हज़रात, आइए मैं आपके सामने जुमा के दिन के कुछ आदाब आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में रखता हूं, जो कि मुसलमानों का बाज तबका जहालत की वजह से इन आदाब का ख्याल नहीं कर पाता है। मोहतरम हज़रात, जुमा के दिन की सबसे पहली और सबसे पहला और सबसे अहम अदब यह है, एक मुसलमान को चाहिए कि जुमा के दिन गुस्ल का एहतमाम करे, नहा के मस्जिद को आए। जुमा के दिन अफदल ये है, बेहतर ये है कि आदमी गुस्ल करके मस्जिद आए, गुस्ल करना ना भूले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में फरमाया, गुस्ल यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम, कि हर बालिग शख्स पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, जुमा के दिन गुस्ल करना, नहाना वाजिब है, जरूरी है। मोहतरम हज़रात, खास करके वो लोग
जो बाजारों में काम करते हैं, मार्केटों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, काम काज की वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं, काम काज की वजह से जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है, काम काज की वजह से पसीने की बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ये वाजिब है, जरूरी है कि वो गुस्ल करके मस्जिद को आए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, अगर कोई भी मुसलमान गंदा होने के बाद भी और पसीना या गंदगी जाहिर होने के बाद भी अगर जुमा के दिन गुस्ल नहीं करता है, गुस्ल करके मस्जिद नहीं आता है, तो वो अल्लाह की नजरों में गुनहगार होगा, मुजरिम करार पाएगा। मोहतरम हज़रात, इस बात का ख्याल करना बहुत जरूरी है कि बाज मुसलमानों का तबका वैसे ही मस्जिद चला आता है, जुमा के दिन के गुस्ल का एहतमाम नहीं करता है। हाँ, कभी कभार बिजनेस में मसरूफ हो गए थे, कोई मशगूलियत आ गई थी, किसी काम में मसरूफ थे, अब जुमा की अजान देने के लिए बहुत कम वक्त बाकी है, अब जुमा की नमाज के लिए जाना है। अगर गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो जुमा का खुतबा मिस हो सकता है, छूट सकता है। ऐसे जरूरत के वक्त इस्लामी शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि वो बगैर गुस्ल के वुजू करके मस्जिद आ जाए, ऐसे जरूरत के वक्त। लेकिन इसको आदत ना बनाया जाए, इसको मामूल ना बनाया जाए, इसको अपनी आदत ना बनाई जाए। कभी कभार ऐसे सिचुएशन में जरूरत के वक्त के खुतबे जाने के लिए, नहाने के लिए वक्त नहीं, अजान देने के लिए बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है, तो ऐसे मुसलमान को चाहिए कि वो गुस्ल ना करे बल्कि वजू करके मस्जिद आए, अजान से पहले आने की कोशिश करे। मोहतरम हज़रात, इस सिलसिले में मुसलमानों से जो गलती होती है वो ये है कि मुसलमान ये समझते हैं अगर वो मार्केट में काम कर रहे, बिजनेस में लगे हुए हैं, उनको पता चलता है कि अजान देने के लिए 5-10 मिनट बाकी है, तो वो तब भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। मैं तो नहाया नहीं हूं, मैं तो गुस्ल नहीं किया हूं, पहले मैं घर जाऊंगा, गुस्ल करूंगा, भले खुतबा कितना ही क्यों ना हो जाए, गुस्ल करके मैं मस्जिद आऊंगा। ये गलती है, ऐसी गलती ना करें। गलती है, सही ये है कि जुमा का खुतबा सुनना जरूरी है आपके लिए, अजान से पहले हाजिरी देना ये आपके लिए जरूरी काम है। लिहाजा अगर आपके लिए नहाने के लिए वक्त नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वजू करके उसी हालत में आप मस्जिद आ जाए और जुमा का खुतबा समाअत फरमाएं। हज़रात, सही बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे खड़े होकर मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इसी दौरान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अरे उस्मान, ये कौन सा वक्त है मस्जिद आने का? आज तो जुमा का दिन है, आपको तो अजान से पहले आना चाहिए था, आप अजान के बाद खुतबा शुरू होने के बाद आ रहे हो। अरे उस्मान, क्यों ताखीर हो गई आपसे? हज़रात, मैं इस हदीस के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले जुमा के हवाले से एक मसला आपके सामने जिक्र कर देता हूं, उसको याद रखिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पे खड़े होके खुतबा देते हुए आपने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की, गुफ्तगू की। इससे मालूम हुआ अगर जरूरत पड़े तो खुद खतीब खुतबे के दौरान सामने वाले को बात कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुफ्तगू की, आगे आपके सामने वो हदीस आएगी। तो जरूरत पड़े तो एक खतीब खुतबा देते हुए अपने खुतबे को काट कर सामीईन से बात कर सकता है और सामीईन में से जवाब भी दे सकता है खतीब को, लेकिन आपस में गुफ्तगू करना मना है। आप आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते सुनने वाले, लेकिन खतीब से बातचीत हो सकती है। जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कहा कि उस्मान, ये कौन सा वक्त है? आपको तो जल्दी आना चाहिए था, आप खुतबा शुरू होने के बाद चले आए। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, दरअसल मेरी ताखीर की वजह यह है, मैं मार्केट में बिजी हो गया था, मैं जो है इतना बिजी हो गया था, नहाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। जैसे ही मैंने अजान की आवाज सुनी, मैं घर भी नहीं गया, मार्केट से मैं डायरेक्ट मस्जिद में आया, वुजू करके मैं मस्जिद आ गया। हजरात,
इस वाक़ये से दो मसले मालूम होते हैं। पहला मसला ये मालूम होता है, अगर अजान से पहले नहाने के लिए वक्त नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वजू करके आ जाए। ये जुमा का खुतबा सुनना बहुत अहम और जरूरी है। और दूसरा मसला इस वाक़ये से भी मालूम होता है कि अगर जरूरत के वक्त आदमी गुस्ल न करे, सिर्फ वजू करके मस्जिद आ जाए तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। मोहतरम हज़रात, दूसरा अदब, जुमा के दिन मुसलमानों को जिसका ख्याल करना जरूरी है वो ये है कि मुसलमान खुशबू का इस्तेमाल करें, इत्र का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप दुकान से इत्र खरीद लें। बहुत कुछ हम खरीदते हैं लेकिन जुमा के दिन इस अदब का हम ख्याल नहीं करते। हजरात, आजकल तो हर इंसान के पास इतनी ताकत होती है कि छोटा मोटा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इत्र खरीद लें। इस मसले को आप याद रखें, अल-वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद के तहत जुमा के दिन इत्र लगाकर मस्जिद आना मुस्तहब है, अफदल है। इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको अजर सवाब अता करता है। जब इत्र लगाकर मस्जिद आना सवाब का काम है तो उसके लिए इत्र को खरीदना भी सवाब का काम है। अल्लाह अकबर। आप किसी दुकान से इत्र खरीदते हैं, ये सिर्फ जायज नहीं, इत्र के खरीदने की वजह से भी अल्लाह ताला आपके हक में अजर सवाब लिख देता है। क्यों? इसलिए कि आप इस मकसद से खरीद रहे हैं ताकि मैं जुमा के दिन एक सुन्नत पर अमल कर लूं, इत्र लगाकर मैं मस्जिद आ जाऊं। इस मकसद के तहत आप अगर किसी दुकान से इत्र भी खरीदते हैं, अल-वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद के तहत, इस पर भी अल्लाह ताला आपको अजर सवाब लिख देता है। हजरात, तीसरा अदब यह है कि आप अपने घर के अंदर जो भी अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, आप अच्छे कपड़े पहनकर आने की कोशिश करें जुमा के दिन। यह भी मुस्तहब अमल है, यह भी जुमा का दिन का एक अहम अदब है जिस अदब का ख्याल मुसलमान नहीं कर पाते। अच्छे कपड़े, मुसलमानों की गलत फहमी या गलती देखिए, जब किसी के यहां किसी की शादी को जाना होता है, किसी की तकरीब में जाना होता है, किसी के पार्टी में जाना होता है, किसी अच्छे आदमी से मुलाकात करने के लिए जाना होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बन सवर के जाते हैं। लेकिन जुमा के दिन आते मस्जिद आते हैं, कभी कभार वक्त होता है घर के अंदर इस्तरी करके आने का, इस्तरी नहीं करते। कभी कभार अच्छे कपड़े मुयस्सर होते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं जुमा का मसला है, जुमा की नमाज पढ़ के अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। हाँ, ये गलती देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पे जुमा के बाद, असर के बाद अगर किसी के यहां शादी का मामला है, किसी की पार्टी है, किसी आदमी से मुलाकात करना है, मुसलमानों का रवैया देखिए, जुमा के दिन आते हैं तो पुराने कपड़े पहन के आ जाते हैं, अच्छे कपड़े होते हुए भी, और इस्तरी किए हुए हैं, टंगा के आते हैं। ये बोलते हैं कि असर के बाद वहां जाना, ये अच्छे कपड़े वहां पहन के जाएंगे। अब जुमा है, जो भी कपड़े हैं वो पहन के आ जाएंगे। ये गलती है मेरे भाइयों, ये गलती है। आप जुमा के दिन जुमा के लिए आ रहे हैं, आप यहां नमाज 2 रकात पढ़ते हैं तो अल्लाह से सरगोशी करते हैं। आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आप जब एक दुनिया के मामूली इंसान के सामने खड़े होने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, उसके पास जाने के लिए अच्छे कपड़ा पहनना आप पसंद करते हैं, क्या अल्लाह के सामने, हमारे हकीकी माबूद के सामने, हमारे हकीकी खालिक व मालिक व मुदब्बिर के सामने खड़े होने के लिए हम पुराने कपड़ों को पसंद करें? हम जो है बगैर सरी वाले, बगैर जीनत वाले कपड़ों का हम इस्तेमाल करें? ये अच्छी बात है? नहीं मेरे भाइयों, जुमा के दिन एक अफजल अमल और अदब ये बताया गया कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी उसके पास अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, उन कपड़ों का वो इस्तेमाल करके मस्जिद आ जाए। हजरात, तीसरा अदब इस्लामी शरीयत ने यह बताया कि जब आप मस्जिद आते हैं, अगर अजान नहीं हुई है, अजान होने के लिए वक्त है, तो आप जितनी चाहें 2-2 रकात करके नमाजें पढ़ सकते हैं। ये नमाजें पढ़ना अफजल है। आप अगर आ गए 10-15 मिनट बाकी है अजान देने के लिए, तो 10-15 मिनट में आप 2-2 रकात करके नमाज में मशगूल हो जाए। नमाजों की पाबंदी आप करें, ये बहुत अहम अमल है जो मुसलमान आम तौर से इस पर अमल नहीं कर पाते। मोहतरम हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कामों की बड़ी फजीलत बताई है।
खुशबू लगा कर आने की, अच्छे कपड़े पहन कर आने की, और अज़ान से पहले जितना वक्त मिले उतने वक्त नफिल नमाजों का एहतमाम करने की बड़ी फजीलतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। सही बुखारी और दूसरी हदीसों की किताब में यह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान अपने घर के अंदर गुस्ल करता है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से वो वजू कर लेता है, फिर वो उसके बाद तेल का इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद वो उसकी इस्तिताअत के मुताबिक जो उसके पास इत्र हो, खुशबू हो, उस खुशबू का इस्तेमाल करता है, फिर आते हुए दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा नहीं करता, दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े के काम नहीं करता, और आता है मस्जिद आने के बाद उसके मुकद्दर में जितनी नमाजें लिखी हैं अल्लाह ताला ने उतनी नमाजें नफिल नमाजें पढ़ लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस जुमा से अगले जुमा के सारे छोटे गुनाहों को बख्श देता है, माफ कर देता है। अल्लाहु अकबर, बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाइयों। आप इन आदाब का ख्याल करें, इन आदाब को मलहूज रखें, ताकि एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान होने वाली जो हमसे खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, छोटे छोटे गुनाह होते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे, ताकि हम उन फजीलतों के हकदार बन जाएं। हजरात, जुमा के दिन के अदब का, जुमा के दिन प्यारे नबी ने जिन आदाब का जिक्र किया है उनमें से एक अदब प्यारे नबी ने यह भी बताया कि जब आप मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आते हुए लोग बैठे हुए हैं, लोगों के खंडों को फलांग कर आने से प्यारे नबी ने मना फरमाया। लोगों के खंडे फलांग कर आने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक आदमी ताखीर से पहुंचता है जुमा के दिन, लोग बैठे हुए हैं, जुमा का खुतबा गौर से सुन रहे, पीछे वाला आदमी क्या करता है, लोगों को क्रॉस करके, लोगों को हटा के, लोगों के गर्दनों को हटा हटा के अंदर दाखिल होके आता है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, ये तकलीफ है, ये ऐसा करने वाला जुमा के खुतबे सुनने वाले मुसलमानों को अजियत पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है। तरीका ये है कि आप अगर ताखीर से आ रहे हैं, जिस जगह पीछे आपको जगह मिल जाए वहीं आप बैठ जाए इत्मीनान के साथ। आप लोगों के गर्दनों को फलान कर और लोगों को हटा के अपने हाथों से उनको पैर लगाते हुए आना, ये लोगों को तकलीफ देने वाली बात है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक आदमी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और दाखिल होकर लोगों के गर्दनों को फलान कर आना शुरू कर दिया, लोगों को हटा हटा के आना शुरू कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जिस जगह तुम्हें जगह मिल जाए, जिस जगह तुम्हें जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। हकीकत में आज ने तुमने लोगों को अजियत पहुंचाई है, तुमने लोगों को तकलीफ दी है। अल्लाहु अकबर, ये तकलीफ है मेरे भाई, लोगों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। जुमा के दिन भी इस अदब का ख्याल करना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। हजरत, जुमा के आदाब के सिलसिले में इस बात का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। आमतौर से लोग इस जुमा के अदब का ख्याल नहीं करते। वो ये है कि आप जब भी मस्जिद आए जुमा के लिए तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़कर बैठना ना भूलें। 2 रकात तहियतुल मस्जिद नमाज पढ़कर आप बैठे। अगर इमाम खुतबा, अगर खतीब खुतबा दे रहा है, खुतबे के दौरान भी अगर आप ताखीर से पहुंचते हैं तो 2 रकात हल्के नमाज पढ़कर तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़कर आप पर बैठ जाएं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ इसका हुक्म दिया। हजरात, सही रिवायत है, हजरत सुलैक अल-गितफानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में दाखिल होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आप सुलैक अल-गितफानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, आकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़े बगैर वैसे ही बैठ जाते हैं मस्जिद में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या सुलैक हम फरका रकातैन व तजव्वज़ फीहिमा। आप फरमाते हैं, ऐ सुलैक उठो उठो, 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ो और हल्की पढ़ो नमाजें, लंबी लंबी नमाजें नहीं। व तजव्वज़ फीहिमा, हल्की नमाजें पढ़ो। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इदा जा अहदकुमुल जुमअह फलयरका रकातैन वलयतजव्वज़ फीहिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, तुम में से कोई भी शख्स जब मस्जिद को आ जाए और खतीब खुतबा क्यों न दे रहा हो, लेकिन उसको चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़ के बैठे, लेकिन उन नमाजों को हल्की नमाज करे, लंबी लंबी रकातें ना करे, मुख्तसर तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ के वो बैठ जाए। मोहतरम हज़रात, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है वो आते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं, 2 रकात नमाज का एहतमाम नहीं करते। आपको अंदाजा होना चाहिए इन 2 रकात नमाजों की कितनी अहमियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खुतबे को आपने छोड़ दिया, आपने खुतबे को काट दिया, काट कर कहा कि ऐ सुलैक उठो, पहले 2 रकात नमाज अदा करो, फिर उसके बाद बैठो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 2 रकातों की कितनी अहमियत बताई गई है। इस अदब का भी आप ख्याल करना ना भूलें। मोहतरम हज़रात, जुमा के दिन जो है इस्लामी शरीयत ने मखसूस आमाल बताए हैं, उन आमाल पर अमल करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और मैंने बताया कि जुमा के दिन मुसलमानों को सिर्फ एक ही अमल याद होता है, वो है जुमा का खुतबा और जुमा की नमाज। इसके अलावा इस्लामी शरीयत ने और भी कुछ आमाल बताए हैं, जिन आमाल का ख्याल करना हर जुमा के दिन हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उनमें सबसे पहला मखसूस अमल, खास अमल जो दूसरे दिनों में करने का हुक्म प्यारे नबी ने नहीं दिया, सिर्फ जुमा के दिन करने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, वो जुमा के दिन किया जाने वाला मखसूस अमल है। उस अमल को बजा लाना, उस अमल को इख्तियार करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सबसे पहला अमल यह है मेरे भाइयों कि जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ना ना भूलें। सूरे कहफ की तिलावत का एहतमाम करना ये जुमा के दिन किया जाने वाला मखसूस अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे कहफ की तिलावत जुमा के दिन करने की फजीलत ये बताई, मन क़रा सूरतल कहफी, मन क़रा सूरतल कहफी यौमल जुमाती अज़ा लहू मिनन नूर मा बैनल जुमअतैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, जुमा के दिन सूरे कहफ की तिलावत कर लेती है या कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान नूर अता करता है, रोशनी अता करता है उसको। उलमा इकराम ने कहा यहां रोशनी का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान उसको उसके सीधे रास्ते पे कायम रखता है, उसको बुराइयों से रोकता है। और उलमा ने यहां तक लिखा कि क़ियामत के दिन पुल सिरात में चलते हुए उसको नूर की जरूरत पेश आती है, अल्लाह तबारक व तआला वहां भी उसको रोशनी अता करता है। मन क़रा सूरतल कहफ़ी यौमल जुमअती अज़ा लहू मिनन नूर मा बैनल जुमअतैन, कि जो आदमी सूरे कहफ जुमा के दिन पढ़ ले उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान एक नूर अता फरमाता है। हजरात, सूरे कहफ की तिलावत करना ना भूलें, सूरे कहफ की तिलावत करें। अगर तिलावत करना नहीं आता, पढ़ना सीखें, कुरान मजीद को पढ़ना सीखें। अल्लाह ताला ने आपको जब उम्र दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है, आप पूरी दुनिया की उम्र दुनिया के लिए लगा दे, लेकिन अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए अगर आपके पास वक्त ना हो, ये हमारी इससे बढ़कर हमारे लिए बदनसीबी नहीं हो सकती। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप पढ़ना सीखिए और सूरे कहफ की तिलावत करना जुमा के दिन ना भूलें। ये मखसूस अमल है इस दिन का। और दूसरा अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन में जो करार दिया, वो अमल ये है कि एक मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके लिए चाहिए कि वो कसरत के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजे। देखो, दरूद और सलाम भेजना हर वक्त मुस्तहब है, हर वक्त फजीलत वाला काम है, हर वक्त मशरू है, हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहना चाहिए, इससे बड़ा अजर और सवाब मिलता है। लेकिन जुमा के दिन खास तौर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद भेजने का खास हुक्म दिया है। खास तौर से मुसलमानों को यह ताकीद फरमाई
کہ مسلمان وہ نبی سے محبت کرنے والا اگر ہے, وہ نبی کی اتباع کرنے والا ہے, اگر اس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے, اس کے لیے چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجے. محترم حضرات, درود و سلام بھیجنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ مکمل درود پڑھیں بار بار, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا تو آپ مکمل درود بار بار جمعہ کے دن پڑھتے رہے. اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے تو آپ شارٹ میں مختصر انداز میں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی علی نبینا محمد وسلم یا صلی اللہ علی نبینا محمد وسلم. اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام جمعہ کے دن ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فان صلاتکم معروضۃ علی. آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ تم مجھ پر درود بھیجتے رہو, کثرت سے تم مجھ پر درود بھیجتے رہو, اس لیے کہ تمہارا درود ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر پیش کرتا ہے. تمہارا درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو, مسلمان کی زبان سے جب درود نکلتا ہے وہ درود اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے. فإن صلاتکم معروضۃ علی. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے میرے بھائیوں کہ جب کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں درود پڑھتا ہے, فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کیا ہے, ان فرشتوں کی ڈیوٹی, ان فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس آدمی کے زبان سے درود نکلے اس درود کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. محترم حضرات, جمعہ کے دن کرنے والا مخصوص عمل یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولیں. حضرات, تیسرا عمل اسلامی شریعت جمعہ کے دن کرنے کی طرف جو ترغیب دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. دعا تو ہر وقت کرتے رہنا ہے, لیکن جمعہ کے دن چاہے مرد ہو یا عورت ہو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, کیونکہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اس دن کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل خیرا الا اعطاه. آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی, ایک ایسا لمحہ, ایک ایسا وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی بندے مومن و مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو ضرور اس کو عطا کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کر کے رہتا ہے. اور جمعہ کے دن کون سی گھڑی ہے, جمعہ کے دن کس وقت دعا کرنے کی بات کہی گئی؟ دوسری روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے پورے دن کے اندر کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے, لہذا مسلمان جمعہ کے ہر وقت جمعہ کے دن دعا کرنے کا اہتمام کرے. لیکن خاص طور سے دو ایسے اوقات ہیں جمعہ کے دن جن اوقات میں دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا بہت ہی زیادہ بڑا سبب ہے. وہ دو اوقات کیا ہے؟ پہلا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ, عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن, اس وقت میں تم اس گھڑی کو تلاش کرو, اس وقت کو تم تلاش کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے اس وقت میں کی جانے والی جمعہ کے دن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ پہلا وقت ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. دیکھو, مسجد میں آ کر کرنا ضروری نہیں ہے دعا. آپ اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں,
आपकी जबान से दुआया कलिमात होना चाहिए। अल्लाह से मांगिए आप अपनी नेक जायज जरूरतें, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को फौरन सुन लेता है। और दूसरा वक्त कौन सा है? सही मुस्लिम की रिवायत से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया मा बैना अन यजलिसल इमामु, हिया मा बैना अन यजलिसल इमामु इला अन तुक़दी अस्सलाह। वो वक्त प्यारे नबी ने फरमाया जब इमाम मिंबर पे आके बैठ जाता है, उसके बाद से लेकर जुमा की नमाज खत्म होने के दरमियान का जो वक्त है, उस वक्त में की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। सवाल ये है, खुतबे के दौरान क्या दुआ करते बैठेंगे आप? नहीं, खुतबे के दौरान दुआ नहीं करना है। कब कब दुआ करना है? आप एक खुतबा खत्म हुआ, जब दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले इमाम थोड़ी देर मिंबर पे बैठ जाता है ना, उसमें जो गैप मिलता है छोटा, 1 मिनट का, कुछ सेकंडों का, आप उस वक्त दुआ कीजिए। फिर जैसे ही एक खतीब खुतबा खत्म करने के बाद नीचे उतरता है नमाज पढ़ाने के लिए, इकामत के दौरान जो वक्त मिलता है, उस वक्त में आप अल्लाह से दुआएं कीजिए। नमाज की हालत में जो सजदे का मकाम होता है, सजदे में आप दुआएं कीजिए। तशहुद में जब इमाम बैठता है, आखिरी तशहुद में तशहुद की दुआएं पढ़ने के बाद आप दुआएं कीजिए। ये मकामात है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दौरान जो दुआ की जाती है जुमा के दिन, उन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। ये 2 औकात खुसूसी तौर पर अहादीस के अंदर आए हैं, इन 2 औकात का लिहाज रखा जाए। और उसके अलावा जुमा के दिन हर वक्त दुआ करना, यह बहुत ही दुआ की कबूलियत का सबब है। मोहतरम हज़रात, इस जो है जुमा के दिन एक मखसूस अमल जो इस्लामी शरीयत ने मुसलमानों को तरगीब दिलाई है, वो ये है जुमा का खुतबा और जुमा की नमाज। जुमा का खुतबा और जुमा की नमाज, ये सबसे अहम काम है जुमा के दिन किया जाने वाला। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने बड़ी माज़रत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, मुसलमानों का अक्सर तबका आप देखिए, अजान होने के बाद खुतबा खत्म होने के लिए 10-15 मिनट बाकी होते हैं जब मस्जिद आता है। मोहतरम हज़रात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये जुमा का खुतबा बहुत अहम है, बहुत अहम है। इससे आपकी तरबियत होती है, आपके अखलाक की तरबियत होती है, आपके अकीदे का सुधार होता है, इसमें आपके बच्चों की तरबियत होती है, आपके दीन और दुनिया को संवारने की बातें इसमें की जाती हैं। अगर आप जुमा के खुतबे को भी मिस कर दें, जुमा के खुतबे की नसीहतों को भी आप सुनने से महरूम हो जाएं, हर जुमा बाज लोग मामूली बना रखा है कि 1:15 बजे 1:20 पे आते हैं या नमाज खड़ने से थोड़ी देर पहले आते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया कि अजान से पहले आप आ जाएं, अजान से पहले आप आ जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूं, आप गौर से सुनिए उस हदीस को। आपने फरमाया, मन गस्सल यौमल जुमाअती वग़तसल वबक्कर वबतकर वमशा वलम यरकब वदना मिनल ईमानी वस्तमअ वलम यल्गु कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अज्रु सनतिन सियामिहा व क़ियामिहा। सही रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान अपने घर के अंदर गुस्ल कर लेता है, गुस्ल करने के बाद मस्जिद को जल्द चला आता है, अजान से पहले हाजिरी देता है मस्जिद में जुमा के दिन, आपने फरमाया, और वो चल के आता है, वो चल के आता है, सवार होकर नहीं, चल के आता है। हालांकि सवार होकर भी आप आ सकते हैं, लेकिन इस फजीलत को हासिल करने के लिए चल के लिए आना है। हाँ, अगर आपका घर काफी दूर है तो आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है चल के आने में, आप गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप आ सकते हैं। इस फजीलत को हासिल करने के लिए आप आने की कोशिश करें। आपने फरमाया, जो कोई मुसलमान गुस्ल कर ले, फिर उसके बाद जो है जल्द मस्जिद पहुंच जाए अजान से पहले, और चल कर आए, सवार होकर नहीं, और इमाम के करीब आ जाए, इमाम के करीब आ जाए और इमाम का खुतबा गौर से सुने, और उसमें किसी भी किस्म का शोर शराबा, किसी भी किस्म की लगुलियत के काम ना करें। बाज लोग जल्दी तो आ जाते हैं मस्जिद में, खुतबा देर दिया जा रहा होता है, सो रहे होते हैं, खुतबे के दौरान सो रहे होते, जुमा को खुतबा गौर से नहीं सुनते, या किसी और से बात करते बैठते। अगर ऐसा मामला है तो आपको यह फजीलत नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी फजीलत है। आपने कहा इमाम से जो करीब हो जाए, उसके बाद गौर से इमाम के पूरे खुतबे को सुने, शुरू से आखिर तक गौर से सुनना है, किसी भी किस्म के लगवियात का काम ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके हर हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला 1 साल नफिल रोजे,
एक साल नफिल नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला उसको अता करता है। अल्लाह अकबर। एक एक कदम के बदले आप जो आए अपने घर से, एक एक कदम के बदले अल्लाह ताला एक साल नफिल नमाजें पढ़ने और एक साल एक कदम के बदले नफिल रोजे रखने का सवाब अल्लाह ताला अता करता है। मोहतरम हज़रात, इस फजीलत को सुनने के बाद भी अगर हमारा ये मामूल रहे कि हम जो है अजान के बाद आ जाए, ये बिल्कुल गलत बात होगी, ये बदकिस्मती वाली बात होगी, ये बड़ी महरूमी वाली बात होगी। मुसलमानों को चाहिए कि जुमा में अजान से पहले हाजिरी दें, अजान से पहले पूरी मस्जिदें हमारी भरी हुई होनी चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस पर अमल करने की कोशिश करें। मोहतरम हज़रात, मैं 2-3 मिनट वक्त लूंगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए जुमा के हवाले से। सबसे पहली बात यह है, मुसलमानों को मैं नसीहत करना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, उनसे हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अजान से पहले अपना बिजनेस बंद कर दें, अजान से पहले आप अपनी दुकानें बंद कर दें। आप हो सके तो जुमा से पहले दुकान ही मत खोलिए, ताकि आप जुमा के दिन उठे, इत्मीनान के साथ नहा ले, गुस्ल कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, नाश्ता करके मस्जिद को आ जाए। हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं नमाज से पहले, कोई मसला नहीं, कर सकते, लेकिन अजान से पहले आप अपने बिजनेस को बंद कर दें। बहुत सारे मुसलमान अजान होने के बाद भी मार्केटों में बिजनेस करते रहते हैं। हराम है मेरे भाई, हराम है। प्यारे नबी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, जब जुमा की नमाज की अजान दे दी जाए, अपनी तिजारतों को छोड़ दो, अपने मार्केटों को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की तरफ चले आओ, नमाज की तरफ चले आओ, जुमा के लिए चले आओ। हजरात, दूसरी बात मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों से जो आमतौर से जुमा के दिन गलतियां होती हैं, बाज लोग व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया में एक दूसरे से जुमा मुबारक बोलते हैं। जैसे ईद मुबारक बोलते हैं, वैसे ही जुमा मुबारक बोलते हैं, जुमा की मुबारकबादी देते हैं। याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ईद के दिन मिलता है। ईद के दिन आप बोले ईद मुबारक, ये अच्छी बात है, ये अफजल है आप, लेकिन जुमा के दिन जुमा मुबारक बोलना ये सरासर इस्लाम के अंदर बिदअत है। इससे बचने की जरूरत है। जुमा के दिन जुमा मुबारक कहने से अपने आप को बचाए रखें। आप डायरेक्ट भी ना बोले, सोशल मीडिया के जरिए भी इस तरह मुबारकबादी जुमा के दिन ना दे, इसलिए कि प्यारे नबी ने जितना किया उतना हम करें, सहाबा ने जितना किया उतना करें, उसी में हमारी कामयाबी है, उसी में हमारी नजात है। मोहतरम हज़रात, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है जुमा के दिन के हवाले से, इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को याद रखेंगे, इस पर अमल करने की आप कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें कही गई हैं, सबसे पहले मुझे और आप हजरात और खवातीन इस्लाम को अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।